बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। আমাদের যিনি কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর ছিলেন বেনিওয়ালজি, তাকে গত রামজি पहले क्या बताया तो 18 তারিখে ওনার জায়গায় আমাদের নতুন যিনি রাজ্য কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল যিনি কোঅর্ডিনেটর পশ্চিমবঙ্গে বানিয়েছেন, আমাদের এখানে মাননীয় যিনি রাজ্যসভার এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট রাজ্যসভার রামজি গৌতমজি এবং আর এমনি আমাদের যে কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর আপনারা আগের দিন দেখেছেন, তিনি হচ্ছে আমাদের লালজি মেদাঙ্করজি, তিনি হচ্ছে কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর। এর আগে ওনাকে তো আমরা স্বাগত আমাদের আসার সময় অনেকেই করছি। আজকে আমরা যারা এসেছি তারা আজকে আমাদের নতুন যিনি আমাদের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর আমাদের এমপি রাজ্যসভার মাননীয় রামজি গৌতমকে আমরা ফুলের তোড়া দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য ফুলের তোড়া দিয়ে করছি। আমাদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক তুষারকান্তি বিশ্বাস, তিনি আমাদের তুষারকান্তি আমাদের রাজ্যের আর এক সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সুকুমার বালা, ঠিক আছে। আমাদের ইনি আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী, আমাদের যে 95 সাইকেল রেতে ছিলেন চপলা মজুমদার, তিনি আমাদের স্বাগত জানিয়েছে। তিনি ক্যান্ডিডেট ছিলেন ফিরোজা আহমেদ খাতুন, তিনি সিসিলে টোপ্পা, তিনি 95 সাইকেল রেলি ছিল, ঠিক আছে। অরুণ কুমার হালদার ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। আমাদের জোনাল কোঅর্ডিনেটর এই জেলার আমাদের জ্যোতির্ময় রায়, তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। আমাদের এই নর্থ ওয়েস্ট জেলার সভাপতি সুবর্ণ বিশ্বাস, আমাদের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর। আচ্ছা, আমাদের গোপাল হালদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট এই জেলার। আমাদের নদিয়া জেলার সভাপতি এবং সহসভাপতি শিবু সরকার এবং শিবু সরকার অমল সরকার, আমাদের সাউথ চব্বিশ রাজ্য কর্মী প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সোমেন সর্দার। আর কেউ আছেন? আচ্ছা, আমাদের ক্যান্ডিডেট ছিলেন আমাদের জোনাল কোঅর্ডিনেটর শৈলেন রায়। আমাদের জোনাল কোঅর্ডিনেটর চন্দন মল্লিক। আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা অনিতা রায় রাজ্যের। আমাদের অনিল রায় পরে যাচ্ছে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। এবার এখন আপনাদের সামনে আমাদের আজকের সভার যিনি প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, আমাদের ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর রাজ্যসভার এমপি মাননীয় রামজি গৌতমজি, আপনাদের এবং তার জন্মদিনকে আমরা সবাই স্বাগত জানাচ্ছি, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার জন্মদিনে। এবং
আর আপনাদের সামনে এখনকার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बामसेव डीएस बोर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज के पश्चिम बंगाल के प्रदेश स्तरीय बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी मेधांकर जी, प्रदेश के अध्यक्ष मनोज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष शिव कुमार सिकदर जी और अनिल जी, पवंतर राय जी, सुकुमार जी, तुषार कांति जी, संदीप नाथ जी, संजीव कार्थियाना जी, भोलानाथ सरकारदार जी, सुरेश कुमार रविदास जी, हरिपड़ा मनोरंजन जी, कुमुद विश्वास जी, मोहसिर रहमान जी, ओम प्रकाश प्रजापति जी और प्रणव हल्दर जी और तमाम जिला के अध्यक्ष, जोन के इंचार्ज, विधानसभा स्तर के समस्त अधिकारियों को, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और निश्चित तौर से अभी मेधांकर जी ने आपके सामने बात रखी, ठीक आज से 10 से 11 महीने बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और ये भी हमारे पास डाटा है कि इंडिया के अंदर अगर 24% का वोट बैंक 2011 सेंसस के हिसाब से देखें तो हाईएस्ट वोट बैंक दलितों का पंजाब के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर आता है और निश्चित तौर से 2011 से आज 2025 हो गया। 14 सालों के अंदर SC ST का वोट बैंक बढ़ गया और बढ़ के लगभग आज 28 से 30% पे आप यहाँ पे खड़े हो। अगर दोनों के वोट मिला दे तो 35% के आसपास पहुंच जाएंगे, 35 से 33% नीचे नहीं जाने वाले। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो 100% अपने दम पर वेस्ट बंगाल की सरकार बना देंगे। लेकिन बात यही आती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज ये बहुजन समाज इतनी बुरे हालातों में वेस्ट बंगाल में कैसे गिरा, उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है कि जो राज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहां से जिता करके संविधान सभा में भेजता है और देश का इतिहास लिखता है और वो राज्य आज अपने दम पर राजनीतिक ताकत बन करके क्यों नहीं खड़ा है। राजनीतिक ताकत आपके पास नहीं है। अगर हमें पूरे स्टेट के अंदर भी नजर डालें, वॉच करें तो आपके पास कोई टॉप लीडर भी नहीं है कि हम जिसको बोलें कि आज दलित समाज का टॉप लीडर है और जिसके कहने पर पूरी बंगाल की सरकारें हिल जाया करती हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं। कहीं भी आपके पास इस कम्युनिटी के बड़े लीडर नहीं है, नेशनल लेवल का लीडर भी नहीं है। तो आखिर रीजन क्या है? और कोई दलित पार्टी भी नहीं है। कोई अगर स्टेट के अंदर अगर हम जाएं, तमाम ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे डिफरेंट दलित पार्टियां होती हैं, लेकिन दलित आदिवासी पार्टी भी इधर नहीं है लेवल की जहां पर उनको अच्छा वोट मिलता है। उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, तो बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन रिसर्च का विषय भी जरूर है। इसके लिए चिंतन मनन करना भी जरूरी है। और मैं आज जब इधर आया तो मैंने यहाँ के संगठन के हालातों के बारे में जानने का प्रयास किया, क्योंकि अब ये मेरे टेरिटरी में आता है। भाई, वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी माननीय बहन जी ने हम लोगों को दी है और उड़ीसा की जिम्मेदारी भी दी है और दोनों स्टेट बहुत हमारे वोट बैंक के हिसाब से मजबूत है, फर्टाइल है, लेकिन बीएसपी यहाँ पे मजबूत नहीं है। और इससे पीछे क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि इन द फ्यूचर के लिए
हम यहाँ पे कितनी अच्छी जमीन तैयार कर सकते हैं। तो उसको लेके मैंने जिलाध्यक्षों को भी खड़ा किया और जिलाध्यक्षों से मैंने पूछा, एक्चुअल आप मेरे को डाटा बताओ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना असेंबली कंप्लीट है कि नहीं है। अगर कोई रॉन्ग फिगर आप देखो तो ठीक नहीं है। आप एक्चुअल माने एक्चुअल, अगर एक है तो एक दो, दो है तो दो दो, अगर नहीं बना है, नहीं एक्टिव है तो बाबा मेरे यहाँ कोई कमेटी एक्टिव नहीं है। हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। प्लान तो उसी के साथ बनेगा। अगर आप मेरे पास फेक डाटा दे दोगे, ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे, तो जो भी पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी अगले 11 महीनों के लिए वो गलत बनेगी। इसलिए मैंने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड लेवल की है वो जरूर चाहिए। मैंने स्टेट पर्सन से पूछा कि आप ये मेरे को बताओ कि स्टेट के अंदर हमारे पास कितने वर्कर ओवरऑल पूरे स्टेट में, माने कि इधर लास्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक का जहां भी आपका है वहां तक का जो बॉर्डर एरिया है पूरे बिहार, मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे पास कितने वर्कर है। तो उन्होंने एक संख्या बताई कि साहब मेरे पास लगभग इतने वर्कर है। जो संख्या बताई उससे तो कुछ भी होने वाला नहीं, उससे एक असेंबली भी नहीं जीतने वाले हम लोग। असेंबली को जीतने के लिए कम से कम आपको 2500 वर्कर एक असेंबली के अंदर होने चाहिए। अगर 2500 जन आपके असेंबली के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग असेंबली इन द इलेक्शन। हम वो भी नहीं कह सकते जीत जाएंगे, बट हम फाइट करेंगे, हम फाइट करेंगे, स्ट्रांगली फाइट करेंगे वहां पर। अगर हमारे पास वर्कर नहीं है तो हम वहां कुछ नहीं करते। हमें जो वर्कर का जो दायरा है, वर्कर का जो बेस है, उससे इनक्लास करना पड़ेगा, उससे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज की डेट में हमारे पास 2000 वर्कर है तो हमें इलेक्शन तक कम से कम 1 लाख स्ट्रॉन्ग वर्कर्स की टीम बिहार या वेस्ट बंगाल में खड़ी करनी पड़ेगी। 1 लाख वर्कर, 1 लाख वर्कर अगर बनेगा तो आपकी वेस्ट बंगाल में बीएसपी इतनी ताकतवर बन जाएगी कि बिना बीएसपी के मर्जी के कोई सरकार अगली नहीं बनेगी। 1 लाख वर्कर हमारे पास चाहिए। और मैंने अभी पूरा ऑफिस भी देखा, इतना जर्जर कंडीशन में है। ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी। क्या मेरा प्रॉपर्टी है क्या? ये किसका प्रॉपर्टी है? ये बहुजन समाज का प्रॉपर्टी। पार्टी है, पार्टी तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन पार्टी में क्या बहन जी इधर आती रहने के लिए? आती क्या? कौन रहता है? आप ही लोग रहते हो नहीं? जोन के इंचार्ज रहते हैं, स्टेट कमेटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी आता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आता है, असेंबली प्रेसिडेंट भी आता है, जो भी लोग आता है उनका ये अपना ऑफिस है। ये बीएसपी का मेरा ऑफिस है। फीलिंग है नहीं है? दिस इज माई ऑफिस। होता है कि नहीं होता है? लेकिन इतना बुरा कंडीशन, इतना गंदा। जब आपका ऑफिस गंदा है तो बीएसपी कैसे बढ़ेगी भाई? हैं? कैसे बढ़ेगी? आप बताइए मुझे कि आपका घर गंदा होता है क्या? घर गंदा नहीं है ना? तो ये ऑफिस कैसे गंदा है आपका? इसका हमारी समझ से व्हाइट वॉश भी नहीं हुआ। जब से लिया तब से बाबा व्हाइट वॉश नहीं हुआ इसका। तो 20 साल से करीब हो गया होगा ना? 8 में हुआ था। 2008 में, 8 में हुआ, 25 हो रहा है। कितना साल हो गया? 17 साल। मैं 20 बोला लगभग, तो मैं सही था। मतलब उसको देख के लग गया कि 20 साल से इसका कुछ हुआ ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं हुआ है। 17 साल से गंदा पड़ा हुआ है। मैं पूरे ऑफिस में जाके देखा, कहीं कुछ ठीक ही नहीं है। ऑफिस माने ऑफिस, ऑफिस चमकेगा तो बीएसपी चमकेगी, है नहीं है? कोई भी बाहर से निकले, बाबा बीएसपी का ऑफिस कितना चमक रहा है, उसके अंदर फीलिंग आनी चाहिए। आपने इसको खंडहर बना रखा है, भूतिया महल। नहीं, भूतों वाला कहीं किनारे पड़ा हुआ है, कहीं डस्ट लगा पड़ा है, कोई देख ही नहीं रहा है। कोई कहता है अरे बाबा ये तो बीएसपी का ऑफिस है, और चमकेगा, अरे बाबा बीएसपी का ऑफिस है, क्या गजब, अच्छा है। तो सबका नजर जाएगा, जब नजर जाएगा तो बीएसपी चमकेगी, है कि नहीं है? अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास उसकी टीम नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कोई पूछता है क्या? आपको कलेक्टर भी नहीं बुलाएगा, मीटिंग भी नहीं बुलाएगा, आपको वैल्यू नहीं देगा। अगर आपके पास टीम है, आपने कोई एजिटेशन किया, आंदोलन किया, कोई बात आपने अपनी रखी, आप 500 के साथ में गए, 200 पीपल के साथ में गए, तो कलेक्टर भी डरेगा, अरे बाबा बीएसपी वाला बहुत स्ट्रांग है, 200 लोगों के साथ में है, 300 लोगों के साथ में है, धरना दे रहा है। कलेक्टर भी आपको बुला के आपकी बात को सुनने का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा?
अब अकेले पहुंच जाओगे तो कुछ सुनेगा आपको? भेजेगा अंदर से, बाबू ए क्लर्क जाओ, देखो क्या बात है, डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। आएगा कोई क्लर्क, आएगा ले लेगा, आपका काम खत्म, जाइए। बीएसपी को मजबूत करने के लिए कोई टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला ये नहीं आएगा। बीएसपी जिधर भी मजबूत है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, अभी बिहार भी मजबूत हो रहा है, बिहार भी स्ट्रांग हुआ। बिहार की खबर आती नहीं आती आपके पास? बिहार भी मजबूत हुआ, आपका बॉर्डर के एरिया था। जब बिहार तक बीएसपी मजबूत हो गया तो बंगाल क्यों छूटेगा भाई? छूटना चाहिए क्या? जब बिहार तक क्रांति आ गई, बिहार तक नीली क्रांति पहुंच गई, तो वेस्ट बंगाल भी पीछे नहीं रहना चाहिए, यहां भी होनी चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? बिहार के अंदर क्रांति फैल रही है तो उत्तर प्रदेश के लोग या मध्य प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, आंध्रा के लोगों ने क्रांति नहीं फैलाई। उसके लिए बिहार के लोग तैयार हुए, बिहार के लोगों ने अपने हाथ मजबूत किए, बिहार के लोग रात दिन गांव में जाके रोए सोए, लोगों को समझाया, बैठे, लोग निकल के आए और बिहार चल पड़ा। लेकिन वही काम आपको करना पड़ेगा। आपका स्टेट का लैंग्वेज देखिए अलग है, डिफरेंट लैंग्वेज। आप क्या बोलते हो थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं भाई, बहुत कुछ नहीं जानेंगे क्या बोल गए आप। उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, 4-6 महीने लगेगा। मधुकर जी सीखेंगे, बंगला सीखेंगे, इन्होंने कहा है बंगला सीखूंगा, तो इनके लिए कोई ट्यूटर की व्यवस्था कर दीजिएगा, 2-4 घंटा डेली बंगला सीखिए आप। अब आपका घर है ये भाई, 11 महीने आपको चुनाव जिताना है। आप एक एक कार्यकर्ता की, एक एक वर्कर की बात को समझ नहीं पाएंगे तो कैसे आगे पार्टी को बढ़ाएंगे? हम हिंदी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे तो हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानता। सही कह रहा हूं, नहीं सही कह रहा हूं? अच्छा, कितने लोग हिंदी जानता है यहाँ पे? तो यहां तो लोग जानते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप जब डीप में जाएंगे, असेंबली में मीटिंग करने जाएंगे, विलेज में जाएंगे, तो उधर शायद 2-4 लोग मिलेगा, तो आपकी बात जो कनेक्ट होगी वो नहीं हो पाएगी। वहां तक अगर बात पहुंचानी है तो आपको बांग्ला सीखना पड़ेगा। बहुत इजी बांग्ला है, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है, बैठिए ये सीखेंगे। और 11 महीने के बाद चुनाव भी होने वाला है, तो हमारा मेन फोकस देखिए है कि हम लोग जहां भी जाते हैं पार्टी वहां मजबूत करते हैं। ये तो रहा अभी तक, पार्टी कभी कमजोर नहीं करी हमने, पार्टी हमेशा स्ट्रांग हुई। रिजल्ट नहीं पता हमें क्या आएगा, लेकिन बीएसपी का नीला झंडा, हाथ के निशान मजबूती के साथ में वहां दिखाई पड़ा है। ये ताकत बन जाती है। रिजल्ट तो बात की बात आएगी, लेकिन वही ताकत अगर आपको भी वेस्ट बंगाल में लेके आनी है तो वेस्ट बंगाल के लोगों को ही काम करना पड़ेगा। हम बाहर से 2 लोग आ सकते हैं, 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन 3000, 4300 लोग नहीं आ सकते। यहां पार्टी खड़ी करनी है तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। और मैं यहां पे देख भी रहा हूं कि यहां पे 90% हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, इनके अंदर फीलिंग है पार्टी को लेकर, अटैचमेंट है, हार्टली अटैचमेंट है इनके अंदर, और ये पार्टी को चला रहे हैं। इन्होंने नीले झंडे की शान को कमजोर होने नहीं दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन हम ये भी देख रहा हूं कि नई जनरेशन जिनके पास जिम्मेदारी का ट्रांसफर होना चाहिए था, कि मजबूत कमजोर कंधों से ट्रांसफर हो करके मजबूत कंधों की तरफ जाए, वो वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से रुका हुआ है। अभी जिम्मेदारी कैसे बनेगी, ये कैसे बात बढ़ेगी? बात तो ऐसे बढ़ेगी, अगर आप लोग यहाँ पे आज 150 जन बैठा हुआ है और 150 जन अगली मीटिंग में अगर एक यंग बॉय को अपने साथ में लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 जन हो गए, नहीं हो गए? माने 50% यंग जनरेशन यहाँ पे हमारे पास आएगी, 50% हो जाएगी, 300 में 50%। देखिए, क्रांतिकारी ये मत सोचिए कि क्रांतिकारी आपके घर में ना पैदा हो, मिस्टर मनोज के घर में पैदा हो जाए, ऐसा ना मत सोचिए। ये फीलिंग करिए कि ये मिशन, ये मूवमेंट, ये पार्टी, आंदोलन हमारा है और इसी ने हमें मान सम्मान दिया है, तो मुझे भी अपने परिवार से 1-2 बच्चों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा, ताकि नीला झंडा हाथ निशान लेके मजबूती के साथ वो मेरे बाद खड़ा हो जाए। ये आपको काम करना पड़ेगा, भले वो नौकरी करे, नौकरी करेगा
तो बामसेफ में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? बामसेफ की भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं कि बामसेफ की कोई रोल नहीं होता, बामसेफ का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस पार्टी और मिशन मूवमेंट को रन करने का, उसे चलाने का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से आज बामसेफ के लोग जॉब पा गए, अर्निंग कर रहे हैं। अगर उस अर्निंग में बाबा साहब ने कहा था कि 10% आप दीजिए, कहा नहीं कहा था? अगर आप 10% अपने पैसा अपनी पार्टी मिशन आंदोलन पे खर्चा करेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, आप पे बैक टू सोसाइटी का काम कर रहे हैं। यहां तक कि आप समझ लीजिए, हम मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, क्या नहीं बैठे? मुस्लिम समाज का बैठा है कोई? मुस्लिम बैठा नहीं बैठा कोई? कौन है? जकात होती नहीं होती? जकात कितने % जकात करते हैं अपने इनकम का? 2% कंपल्सरी, 2.5% कंपल्सरी है ना? कंपल्सरी ना? देखिए, माने कि मुस्लिम समाज जो होता है वो जकात में अपनी इनकम का कंपल्सरी 2.5% जकात में देता है। जकात समझ नहीं चलता है लोग, गरीबों के उत्थान के लिए, अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, हेल्प के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए 2.5% करता है। लेकिन अगर मैं बामसेफ वालों से पूछ रहा हूँ, एम्प्लॉय वालों से पूछूं, जो तुम्हें जो कुछ मिला है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस आंदोलन के तहत मिला हुआ, इस मिशन और मूवमेंट के तहत मिला हुआ है, तो क्या भारत का एक एक एम्प्लॉय 2.5% अपने आंदोलन को चलाने के लिए पैसा देता है? एक पैसा भी नहीं मिलता, 0.25 भी नहीं मिलता, 0.25 भी नहीं मिलता। अगर ये लोग भी, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, अपनी इनकम का 2% भी पार्टी मिशन मूवमेंट में लगा दें तो वेस्ट बंगाल में आने वाले समय में बीएसपी को कोई पीछे कर नहीं पाएगा। मैं दावे के साथ में कहता हूं, और इसके लिए भी आपको भी करना है। जो हमारे पार्टी के मजबूत लोग हैं, जिनके पास अपनी अर्निंग है, उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी में फंड मेंटेनेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। मेंटेनेंस आएगा तो पार्टी चलेगी। पार्टी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, झंडे चाहिए, फ्लैक्स चाहिए। कहां से आएगा? कौन देगा भाई? अदानी नहीं देगा आपको, अंबानी नहीं देगा आपको, वो तो आपको रोकने के लिए बैठे हुए। आपको अगर खड़ा होना है, तो मैंने पहले बोला, आपको अगर खड़ा करना है बिहार या वेस्ट बंगाल के अंदर, तो अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। झंडे आए नहीं आए इधर? झंडे नहीं ना? झंडे नहीं आया ना पार्टी से? आया है, एक गाड़ी आया, एक गाड़ी पुराना झंडा आया। विलेज लेवल के लिए हमारे पास है झंडे भी, हमारे पास सभी विलेज लेवल के लिए काम के लिए झंडे वहां पे पर्याप्त हमारे पास है। एक गाड़ी झंडा हमारे पास है। पार्टी के जो जिले कमेटी के जो लोग आते हैं, उनके यहाँ आने वाले समय जब भी मीटिंग होगी, हमारे प्रभारी जब जाएंगे, हमारे जोन के इंचार्ज जाएंगे, तो पार्टी के झंडे यहाँ पे रखे हुए हैं, आप एक एक बंडल लेके जाइए। और जब पार्टी में मीटिंग हो तो झंडे वहां आसपास कम से कम 500 मीटर तक लगे होने चाहिए। 500 मीटर तक झंडे लगे होने चाहिए, क्योंकि भले आपकी मीटिंग में 50 लोग बैठा हो, अगर झंडा लगा हुआ है तो उसे 5000 लोग देखेंगे। पक्का है? नहीं तो पक्का है। और जो हमारा होगा उसके अंदर फीलिंग आएगी, वाह बीएसपी दिखना शुरू हो गई, लग रहा है बीएसपी कोई बात हो रही है, बीएसपी लग रहा बढ़ रही है। झंडा और डंडा दिखाई नहीं पड़ा, आप कोने में जाके कहीं मीटिंग कर लो, कोई जान भी नहीं पाएगा। और कोई जान नहीं पाएगा तो दूसरे को लगेगा बीएसपी काम ही नहीं कर रही। सही कह रहा नहीं कर रहा हूं? तो झंडा लगाना जरूरी है। और जितने भी पार्टी के जोन के इंचार्ज हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, उनकी गाड़ी में भी झंडा होना चाहिए। और गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बीएसपी लिखवा लीजिए, गाड़ी में झंडा लगा लीजिए। डरिए और ये मत, डरने की जरूरत नहीं है। जो आपको यहां डराएगा, मैं उसे दिल्ली में डरा दूंगा। उनको आना वहीं पड़ेगा। आएंगे नहीं आएंगे बताइए मुझे? जो तुमको डराएगा, उनके आका को दिल्ली आना पड़ेगा। फिर हम वहां कमजोर नहीं है। कमजोर है क्या? वहां बिल्कुल कमजोर नहीं है। वहां नीला झंडा, हाथी निशान बहुत मजबूत है, समझ लेना आप लोग। इससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरोगे उतना दबाया जाएगा। बाबा साहब ने यही कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। और जुल्म सहना बंद करिए,
वेस्ट बंगाल के अंदर। आपने बंद कर दिया तो आप शासक बन के यहां पे राज करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। एक बार डराओगे, दो बार डराओगे, बिल्कुल नहीं। हम तो इस मिशन मूवमेंट के लिए शहीद होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्रांति का बीज पैदा करके जाएंगे। ये फीलिंग करके जाएगी। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी। उसके बाद मैं देखता हूं आए दिन बलात्कार, रेप, मर्डर कंटिन्यू SC/ST के साथ हो रहा है। सरकार यहाँ पे आंख बंद किए हुए, कान बंद किए हुए, उससे कोई मतलब नहीं। उसको आपके दुखों से कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ में ये नाइंसाफी ना हो, एट्रोसिटी ना हो, तो आपको BSP को मजबूत करना पड़ेगा। अगर BSP मजबूत हो गई, फिर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपकी बहू बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके। मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं। और अब मैं यही कहना चाहता हूं कि BSP को मजबूत करना है तो वर्कर्स की टीम को खड़ा करना पड़ेगा। हम कहते नहीं कि 11 महीने बाद यहां इलेक्शन होने वाला, सत्ता का महासंग्राम होने वाला। होना नहीं होना, क्या है? सत्ता का महासंग्राम, सत्ता की लड़ाई होने वाली। सत्ता के महासंग्राम आप करने जा रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ये मन में सबके बैठा हुआ है कि मेरी पार्टी काश में सत्ता में आ जाए, काश मेरी पार्टी सत्ता में आ जाए, काश मेरे MLA जीत जाए। है कि नहीं है? सबके मन में है कि नहीं है? किसके मन में नहीं है बताओ? सबके मन में है ना कि मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। आप जब वहां पे टीवी देखते हैं तो आप फीलिंग करते हो, यार काश एक आ जाता मेरा रिजल्ट, काश 2 मेरे जीत जाए, काश 3 निकाल आते मेरे यहां से। होता है कि नहीं होता है? लेकिन थोड़ी देर में आप पूरा ठंडा हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया, तो फील अंदर से बहुत होता है, बहुत दुख आता है अंदर से। लेकिन जिम्मेवारी तो हमारी है कि हमने वो 5 साल वो काम ही नहीं किया। जब 5 साल मैंने काम नहीं किया तो होप कहां से आएगी? होप तो नहीं आएगी। अगर हम एक काम करें कि हम टारगेट बेसिस पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, तो अब हम सोचे कि भाई मेरी उस जिले से, मालदा से, पुरुलिया से, वर्धमान से वो सीट मजबूत थी, वहां मजबूत था, वो मजबूत था, वहां बहुत तगड़ी फाइट हमारी थी, वहां बहुत स्ट्रांग वर्कर थे, तब तो आपके माइंड में बात आएगी, तब तो हमारे लिए सोचने वाली बात। लेकिन जब कुछ किया ही नहीं तो सोचने वाली बात क्या? इसलिए मैंने कहा कि सत्ता के महासंग्राम को लड़ना है तो आपको सेना खड़ी करनी पड़ेगी। सेना कौन है? बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन मूवमेंट और आंदोलन का सिपाही कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? एक एक वर्कर हमारा इस मिशन मूवमेंट का सिपाही कहलाता है। मिशन और मूवमेंट में कार्यकर्ता नहीं होता है, मिशन और मूवमेंट में क्या होता है? सिपाही होता है, सोल्जर होता है। क्या कहते हैं उसे? ये सोल्जर है, ये मिशन का सोल्जर है, मिशन का सिपाही है। तो BSP का कार्यकर्ता मात्र कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो इस मिशन मूवमेंट और आंदोलन का एक सिपाही है, सिपाही है। और इसलिए हम सब कहते भी हैं कि BSP पार्टी बाद में है, मिशन और मूवमेंट पहले। यही बोलते नहीं बोलते हैं? तो अब हमारे पास जब सत्ता का महासंग्राम करने जा रहे हैं और हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है, सेना हमारे पास नहीं है, तो बिना सेना के आप कुछ कर भी नहीं पाए। बिना सेना के आप कोई सत्ता का महासंग्राम जीत नहीं सकते। आप उसमें जीतना तो छोड़ दीजिए, आप टिक नहीं पाएंगे 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहते हैं उसको जीतना है तो उस लेवल की हमें तैयारी भी करनी पड़ेगी, उस लेवल के हमें कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करनी पड़ेगी, सिपाहियों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। तब जाके मैं कहूंगा कि 11 महीने बाद ये कह सकते हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल में BSP कोई बड़ा काम करने की ओर चल चुकी है। इतना हम बोल सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते तब भी कि 11 महीने में हम यहाँ पे आकर के सरकार बना देंगे। ये सब बेकार बातें, एक्चुअल बात नहीं हो सकती है, ऑथेंटिक बात नहीं है, ये लीगल बात नहीं है, साइंटिफिक नहीं है ये कि हम 11 महीने में सरकार बनाएंगे। लेकिन आप अगर काम करना शुरू कर दो, इतनी ताकत तो बना सकते हैं कि बिना BSP के वहां ताला नहीं खुलेगा। इतनी ताकत ला सकते हैं। अगर हम काम करेंगे इतनी ताकत आ सकती है कि बिना BSP के मर्जी के कोई सरकार वहां नहीं बनने वाली। इतनी ताकत बनानी, अगर एक बार आपने ताकत बना ली, तब में हम कह सकते हैं कि अगली बार हम सत्ता की सरकार का सपना देख सकते हैं। हम इस 11 महीने में कोई सरकार का सपना नहीं देख सकते। ये है माने कि साइंटिफिक।
मैथमेटिकल, मैथ के हिसाब से ये सिस्टम बना हुआ। हम झूठा वादा करें हम सरकार बना देंगे, हर बार सरकार बना ही रहे हो आप लोग, तो पिछले 30 साल से सरकार बना रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं अगर आप सबने साथ दिया, और प्रभारी जी 24 आवर फ्री है। पहली बात ये, पहले लोग आए गए, मुझे नहीं मालूम कितना देर रुके नहीं रुके यहाँ पर, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर, महीने में 28 दिन रुकेंगे आपके बीच में ये, और महीने में कम से कम 2-4 दिन के लिए मैं भी आऊंगा बिहार के चुनाव के बाद। बिहार चुनाव के बाद अगर मैं उधर आऊं बॉर्डर पे, तो बिहार आपके एंटर कर जाऊंगा। भाई वर्धमान बॉर्डर पे आता है शायद मेरी समझ से, कुछ बिहार बॉर्डर पे आता है ना, बिहार का बॉर्डर है वो, तो उधर मीटिंग करने आएगा, इधर भी मीटिंग कर लूंगा। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद फिर मैं आपको कम से कम महीने में 10 दिन वेस्ट बंगाल में देने का भी काम करूंगा, 10 दिन दूंगा। लेकिन मुझे आप लोगों से उम्मीद भी है और आशा भी है कि मैं जब इधर आया तो बहुत गंदा था भाई, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, इसको मेंटेनेंस आप सब लोग इकट्ठा करो, जितने भी लोग हैं आप सभी लोग मेंटेनेंस इकट्ठा करिए और बामसेप के लोगों को संपर्क करिए कि भाई अब बीएसपी सोने वाले नहीं, बीएसपी जगाने वाले लोग आ गए हैं। बहन जी ने भेज दिया है, बीएसपी में जागने वाले लोग आ गए हैं, सोने वाले नहीं आए अभी, ठीक है। तो अब बीएसपी की हर चीज हमें बेहतर करनी है, ऑफिस बेहतर करना है, कंप्यूटर लगाना है, टाइपराइटर बैठाना है, टाइपिंग होनी चाहिए। हम जाकर के बाहर से टाइप करा के लाएं, क्या मतलब है? हमारी गोपनीय बातें, कॉन्फिडेंशियल बातें बाहर जा रही हैं। हमने किसको बनाया है, किसको इंचार्ज बनाया है, किसको जोन का इंचार्ज बनाया, हम लोग देंगे ना। चलिए, क्या नाम है आपका? ताली बजाइए आप लोग। वेरी गुड, कर देंगे। क्या नाम आपका है? चलिए, वेरी गुड। सुना था, मुझे हवलदार जी ने कहा था, हल्दर ने कहा था, मजबूत लोग हैं सर, जोश आ जाएगा तो पूरा नीला क्रांति बचा देंगे यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर। कर दिया? कौन बोला? चार बोला? अच्छे, ताली बजाइए, 4 फैन भी आ गए आप। অরুণ বিশ্বাস देगा एक फैन, अशोक कुमार सुमन देगा एक फैन, आज शंकर प्रसाद राय एक फैन। वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें देखिए, मैंने पहले बोला बीएसपी आपकी, ऑफिस आपका, और इसे मजबूत करने वाला कोई बाहर नहीं आएगा, आप ही करना पड़ेगा। बस ये है कि टीम लीडर अच्छा होना चाहिए, टीम का लीडर अच्छा होना चाहिए, और 100% हम लोग आपकी बातों पे खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए 100%, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई हम लोगों के बारे में, और आपको कभी मिलेगी भी नहीं। आप जो कहेंगे वही होगा, और जो आपकी मर्जी का वो होगा, लेकिन गलत काम कोई नहीं होगा। आप कहोगे गलत करो, वो भी नहीं होगा, पार्टी हित में सारा काम होगा। और माने बहन जी को, अभी हल्दर जी बैठे हुए हैं, आपके पुराने साथी पूर्णा हल्दर जी, दिल्ली में रहते हैं, अनमेरिड है शायद, इन्होंने शादी नहीं की है, तो बहन जी से मिले थे, इनको फिर से पार्टी में काम पे लगा दिया गया है। पहले वाले साथ इनको हटा दिए थे, इनको लगा दिया गया है। अब ये मेधांकर जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ में मूवमेंट करेंगे। और बहन जी ने कहा कि आज आप लोगों को बताने के लिए, तो मैंने ये कहा और भी नौजवानों की जरूरत है, मुझे और भी नौजवानों की जरूरत है प्रदेश के अंदर, जो प्रदेश के अंदर नीली क्रांति के लिए काम कर सके। आप ऐसे और भी जो जोशदार लड़के हो, आप निकाल के दीजिए, नाम दीजिए, 100% उनको आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। मुझे ऐसा नहीं कि एक आदमी से काम चलेगा, मुझे तो बहुत से लोग चाहिए, अलग अलग पदों के लिए चाहिए। अभी हमें सेंट्रल कोऑर्डिनेटर में और 1-2 लोग मतलब मिलेंगे, तो उनको बनाएंगे हम उनको, लेकिन मैं चाहता हूं कि नौजवान होने चाहिए। थोड़ा सा हमारे सीनियर लोग हैं, वो जहां पे हैं, जिस पदों पे बने रहेंगे, लेकिन नौजवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नौजवान जरूरी है। माननीय भाई ने कहा कि 50% नौजवानों की भागीदारी हर स्तर पे आपको सुनिश्चित करनी है, हर जगह पे। माने आपके असेंबली कमेटी में 50%, जिला कमेटी में 50% यूथ, स्टेट कमेटी में 50% यूथ, जोन इंचार्ज 50% यूथ। जब तक आप यूथ को कोई पद नहीं दोगे तो यूथ आपकी तरफ नहीं आएगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। देखिए, यूथ को लाने के लिए हमें एक काम करना है। और साथ ही जितने पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, अब जितने भी पार्टी के इवेंट हो, माननीय बहन जी का जन्म दिवस है, माननीय कांशीराम साहब का जन्म दिवस है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस है, महात्मा फुले का जन्म दिवस अगर आप मनाते, जो भी आपके इष्ट यहाँ पे महात्मा महापुरुष है,
पार्टी के बैनर में जो आप इवेंट करते हैं, तो उस इवेंट के अंदर आप अपने पूरे परिवार के साथ में आएंगे, अकेले कभी नहीं आएंगे। अकेले नहीं आएंगे आप, कि आप अकेले चले आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, आपका बेटा है, बेटी है, आपकी आपका बहू है, आपके बच्चे हैं, उन सबको लेकर के आपको आना है, उनको लेकर के आना है। जब तक आप अपनी फीलिंग को, अपने मिशन को, अपनी भावनाओं को, अपने आंदोलन को नीचे के लोगों को समझाएंगे नहीं, नई जनरेशन को, नई जो प्लांट हमारा उससे समझाएंगे नहीं, तब ये मूवमेंट आंदोलन हमारा कमजोर पड़ जाएगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कमजोर पड़ेगा। अगर आप साथ में लेकर आएंगे तो 100% वो 3 साल का बच्चा भी है, वो ही पूछेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जय भीम बोलेगा, वो भी ध्यान से बोलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारा गॉड है कि नहीं है? किसका नहीं है बोलो भाई? सबका है ना? हाँ, सबका होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे भगवान ही है, भगवान जैसे भी नहीं, भगवान ही है। ये माननीय बहन जी ने अमित शाह जी को जवाब देने का काम अपने बहन कुमारी मायावती जी ने किया था जब। और मैं फिर से कहूंगा, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप आज जो बड़ी संख्या में इधर बैठे हुए हैं, तो उसको देख के हमें उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीएसपी मजबूती के साथ में खड़ी होगी और यहाँ पर निर्दयी सरकारों को हटाने का काम भी करेगी और बहुजन समाज के लोगों को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का भी काम करेगी। और इसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए, सभी लोगों का खून पसीना चाहिए, आप सभी लोगों का जो धन, तन, मन और क्या बोलते हैं, तन, मन और धन, इन तीनों चीजों से आपका हेल्प चाहिए, तब जाके बीएसपी यहाँ पे खड़ी होगी। मुझे पूरी आशा विश्वास है कि हम ये काम करेंगे, 100% करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात कहीं पे खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी अपनी अध्यक्षी भाषण से अपनी बात को खत्म करेंगे। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, मदर कांशीराम साहब अमर रहे, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। जो जमीन सरकारी है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। আপনাদের সবার তরফ থেকে, আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে আমাদের আজকের প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা এবং ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ মাননীয় রামজি গৌতমজিকে আমাদের তরফ থেকে, আপনাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যিনি আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর এবং আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় রামজি গৌতমজি যে কথাগুলো বলেছেন এবং আমাদের সেই কথাগুলো অনুসারে আমরা আগামী দিনে কাজ করব এই আশা আপনাদের সবার রেখে আজকের এই সভা এখানেই সমাপ্তি করছি। এখন দোতলায় যাবেন, ওনারা একটু খাবেন, তো সেই জন্য দোতলায় একটু সময়ের জন্য কেউ যাবেন না, কারণ অনেকে ঢুকে যান, তো আমাদের খাবার দিতে অসুবিধা হয়, সেই জন্য আপনারা কেউ দোতলা পর্যন্ত যাবেন না। এই আশা আকাঙ্ক্ষার পরে নিচে আসবেন, কথা বলার দরকারে কথা বলবেন। এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় ভীম, জয় ভারত।